So let's begin this chapter, haloalkenes and haloarenes. And I will try to finish this chapter in 4-5 parts. So let's begin. Okay, so introduction. Alkane. अल्केन में अगर हम एक -H और +X कर दें तो वो हेलो अल्केन बन जाता है। हेलो अल्केन मतलब कि कोई अल्केन है, ठीक है? उसको उसमें बस कोई हैलोजन अगर हम ऐड कर दें उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के तो वो हेलो अल्केन बन जाता है, ठीक है? तो इस चैप्टर में बेसिकली वी विल सी how to make haloalkanes, the process of making haloalkanes, different processes and different reactions, and also we will try to learn about haloarenes. haloarenes भी आगे हम समझेंगे कि वो क्या है, ठीक है? अब पहले हम haloalkenes पढ़ते हैं। तो haloalkenes में the first type is monohaloalkenes. It means that in this uh, in this we will add only one halogen, and this is also called alkyl halide, ठीक है? And the general formula for this is CnH2n plus 1x. So basically, monohaloalkenes can be also of three types. Primary monohaloalkenes, where only there is only the carbon is attached to only one carbon, then it is called primary haloalkene. And when the carbon is attached to two carbon, then it is called secondary haloalkenes. And tertiary, when it is attached to three carbon. So now the second type of haloalkene is dihaloalkenes. It is also of two types. Like if the two dihaloalkenes basically means there is two halogen groups, two halogens. So if the halogen which is attached to the carbon is on the same carbon, then it is called geminal. सो बेसिकली मतलब एक ही कार्बन पे जब दो हेलोजन जुड़ा हो तो वो जेमिनल हो जाता है, उसको जेमिनल बोलेंगे। एंड देन द सेकेंड टाइप इज व्हेन द टू हेलोजन इज अटैच्ड ऑन डिफरेंट कार्बन्स, देन इट इज़ कॉल्ड विक्सिनल। मतलब बगल बगल कार्बन पे जब हेलोजन ऐड हो। और ये जो नोट्स है वो अलग सर के लेक्चर वीडियो से बना हुआ है। सो बेसिकली मैं उन्हीं के जो लेक्चर नोट्स है उसको मैं मतलब उसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो नाउ ट्राई haloalkenes. It means that there is three halogen group in this, and also called haloform. It can be of different types. Like if there is three iodine attached to attached to methane, then it is iodoform. When it is bromine, it is bromoform. When it is chlorine, it is chloroform. Now the fourth type can also be tetrahaloalkenes. It means there is four halogen group, so it can be carbon tetrachloride or carbon tetrabromide. Okay, we are learning. We are just understanding the basics of this chapters. This types of questions will not come in the examination. Okay, so what is allyl halides? When the when the halogen is attached to the carbon of carbon besides the alkene group, then it is called allylic halides. मतलब कि अगर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हो तब उसको बोलेंगे अलाइलिक हलाइड्स। विनाइलिक हलाइड में हो जाएगा कि जैसे विनाइलिक हलाइड इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले ही कार्बन पे जुड़ा हो जब हेलोजन, तो वो हो जाएगा विनाइलिक हलाइड। जहाँ डबल बॉन्ड हो उसके जस्ट बगल में हेलोजन लगा हो तो वो हो जाता है विनाइलिक हलाइड। एंड विनाइलिक हलाइड इज सिमिलर टू अलाइलिक हलाइड। It is just that here it is benzene ring present in the benzylic halide, and the halogen group is attached to the carbon next to the alkene group, so it is just similar to allylic halide। and इसमें benzene ring से जुड़े हुए कार्बन पे हेलोजन लगा हो, same like allylic halides। okay, now we will understand haloarenes. Haloarenes are also called aryl halides.
सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हो, जैसे ये बेंजीन का एक रिंग है और उससे डायरेक्टली एक हैलोजन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा हेलोअरीन्स। ओके, अब हम देखेंगे कि हेलो अल्कीन्स बनाने का डिफरेंट प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हम लोग हेलो अल्कीन्स को बना सकते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और हेलो अल्कीन्स। अल्काइल हैलाइड को ही हेलो अल्कीन्स बोलते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा फ्रॉम अल्केन। अगर हम अल्केन को ले लें, अगर 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 कोई हमें अल्केन दे और बोले कि डायरेक्ट तुम इससे हेलो अल्कीन बनाओ, सो हाउ विल मेक द हेलो अल्कीन्स। सो डायरेक्ट हम उसका हेलोजिनेशन कर देंगे। हेलोजिनेशन मतलब कि उसमें पहले तो हमको जो हेलो अल्कीन बनाना होगा, मतलब जो हेलोजन का यूज करना है, जैसे हमें क्लोरीन का बनाना है, तो उसमें हम लोग क्लोरीन देंगे और फिर उस पर एनर्जी डालेंगे, एच म्यू, मतलब एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। सो इन दिस प्रोसेस द CH4 will lose one hydrogen and chlorine will get attached to CH3. So in this process we will get methyl chloride or chloromethane, and HCl will be the byproduct, or this process is through the free radical mechanism। और इस मतलब अल्कीन से जो अल्काइल हैलाइड बनाने का प्रोसेस है, इसको लैब में नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, और मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होने की वजह से हम मतलब लैब में बना के इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो बट प्रिफर्ड इन इंडस्ट्रियल मेथड, तो हम इसे इंडस्ट्रियल मेथड में प्रीफर करते हैं ताकि हमें लार्ज स्केल पे लार्ज प्रोडक्ट मिल सके, क्योंकि इसमें बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका हम देखते हैं मैकेनिज़्म, इसमें क्या होता है। मैकेनिज़्म में क्या है, जैसे मान लीजिए CH4 है प्लस क्लोरीन इसमें हम लेंगे एंड एनर्जी डालेंगे, तो वो एक हाइड्रोजन लूज करेगा और क्लोरीन जाके उससे अटैच्ड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। फिर अगर हम उस पर क्लोरीन देंगे और फिर अगर एनर्जी डालेंगे तो फिर से वो एक हाइड्रोजन लूज करेगा और क्लोरीन एक दूसरा अटैच्ड हो जाएगा जाके, तो वो बन जाएगा फिर से CH2Cl2। फिर अगर क्लोरीन और एच म्यू, तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूज, और उसमें फिर से HCl प्लस CHCl3, और ये लास्ट में CCl4 प्लस HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि हमें हमें 1 2 3 4, हमें 4 प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हेयर मिक्स्ड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, इसलिए इसको इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है ताकि हमें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट मिल सके। तो CH3Cl जिसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन, CH2Cl2 जिसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। And now here is two questions on this। सो ये मतलब ऐसे इसमें क्वेश्चन यही है कि जैसे ये ऐसे दे दिया गया, तो इसमें अभी पूछना है, बताना है कि ये मतलब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे कि कार्बोकैटायन में वी हैव लर्न दैट 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एंड देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो जैसे कि CH, जैसे ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे एक इक्विवेलेंट अगर हमें क्लोरीन दे दिया जाए और उस पे एनर्जी दिया जाए, तो फिर वो क्या मतलब क्या बनेगा। तो पहले तो हम देखेंगे जैसे कि हमें क्लोरीन पहले हम लगाएंगे कहाँ क्लोरीन को। तो हम क्लोरीन को वहाँ लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे एक लगा सकते हैं 2 डिग्री पे और एक 1 डिग्री पे लगा सकते हैं। तो 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो अगर हम क्लोरीन यहाँ लगाते हैं हाइड्रोजन को हटा के, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है 55% बनेगा, और 1 डिग्री लेस स्टेबल है, सो वो माइनर में बनेगा 45%। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3 CH2 CH3 अगर हम उसमें 1 इक्वावेलेंट क्लोरीन और एनर्जी देंगे, तो फिर उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे जैसे कि अगर हम उसमें क्लोरीन देंगे, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH तो बेसिकली हम यही सोचेंगे कि जहाँ 3 डिग्री है उस वहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये सही बात भी है। स्टेबल तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री को ही होना चाहिए, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि 3 डिग्री इज़ स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। बट यहाँ पे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री ज़्यादा है, 1 डिग्री 1 2 3, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि जो क्लोरीन हेलोजन है वो जाके 1 डिग्री पे लग जाए इंस्टीड ऑफ 3 डिग्री। तो
Besides that, the 1 degree is not 1 degree is less stable than 3 degree, but the chances that the chlorine will get attached to 1 degree is more, because the presence of 1 degree is more here. As we can see here, there are three 1 degree carbons, so chlorine will get attached to 1 degree, so major product will be formed due to of 1 degree. So that is why I have written here that here the chances are more, because 1 degree hydrogen are more, hence major is at 1 degree. Okay, so the first preparation we have learned is what we have learned. The first preparation of alkyl halide was from alkane. एंड नाउ वी विल सी, जैसे अल्केन में अभी हमने क्लोरीन के बारे में पढ़ा, तो क्या हम उसी की तरह ब्रोमिनेशन कर सकते हैं? क्लोरीन को अगर हटा दें, अगर हमें ब्रोमीन मिले, तो क्या हम उससे हेलो अल्कीन बना सकते हैं? सो या द प्रोसेस इन द सेम वे एज क्लोरीनेशन, कोई भी अंतर नहीं है। जैसे क्लोरीनेशन हम कर रहे थे, वैसे ही हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे, और ठीक है, ब्रोमिनेशन का तो समझ में आ गया, ब्रोमीन। अगर क्या हम आयोडीनेशन भी सेम तरीके से कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। जैसे अगर हमें CH4 मिला प्लस I2 आयोडीन मिला, और अगर हमें एनर्जी मिला, तो क्या वो प्रोसेस होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और आयोडीन वहाँ पे आके लग जाएगा। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे HI फॉर्म होता है। तो HI जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब कि वो क्या कर सकता है ना, कि CH3 आयोडीन जो यहाँ पे बन रहा है, CH3 आयोडीन को व्हाट वी कैन कॉल इट, जो यहाँ पे क्लोरो इथेन बन रहा है ना, क्लोरो आयोडीन, सॉरी, यहाँ पे जो क्लोरो आयोडीन बन रहा है, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड ऑफ क्लोरो आयोडीन is more here because of the strong reducing agent which we have got here as byproduct. So इसलिए तो मतलब क्या होता है ना, कि यहाँ पे प्रोडक्ट तो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल हो जाता है। मतलब कि ये फिर से CH3 आयोडीन जो होता है CH4 प्लस आयोडीन बन सकता है। तो फॉर बेटर यील्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और HiO3। तो कि मतलब ताकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल ना हो जाए, मतलब कि इसलिए हम HNO3 और HiO3 का यूज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे HiO3 और अगर HI बन रहा है ना, तो वो फिर से वहाँ पे हम HiO3 का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं I2 प्लस 3H2, तो यहाँ पे बस I2 प्लस 3H2 बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम HNO3 और HiO3 का इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो प्रोसेस जो हो रहा है आयोडीनेशन का, वो रिवर्सिबल ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये CH3 आई को रिड्यूस करके फिर से CH4, तो फिर वो प्रोसेस करने का फ़ायदा क्या, जब प्रोसेस रिवर्सिबल ही हो जाए, तो प्रोडक्ट फिर बनेगा, फिर प्रोडक्ट से फिर से रिवर्स होके फिर से वही हमें मिल जाएगा, मीथेन। तो इसलिए यहाँ पे हम HNO3 और HiO3 we will have to keep this in mind that HNO3 and HiO3 is very strong oxidizing agent and it helps us to make the process of iodination easy. Okay. So यहाँ पे मैंने लिखा है iodination is reversible because of the formation of strong reducing agent HI. HI reduce CH3I to CH4, which is a problematic thing. To solve this problem or remove HI, we use a strong oxidizing agent. ठीक है. So first process of making alkyl halide is completed, and the second process पहले हमने किससे देखा? पहले हमने देखा अल्केन से। अब हम देखेंगे अल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं। तो अल्कीन से बनाने के लिए हम वहाँ पे हैलोजन एसिड का यूज करेंगे। पहले तो हम बेसिकली सिर्फ एक हैलोजन जिसका हमें यूज़ करना था, जिससे हमें जो प्रोडक्ट बनाना था, उस हैलोजन को हम यूज़ कर रहे थे और एनर्जी का यूज़ कर रहे थे। और अल्कीन में अब हम हैलोजन एसिड का यूज़ करेंगे, और इस प्रोसेस को बोलेंगे मार्कोनिक ऑफ रूल। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि जैसे अल्कीन है, अल्कीन डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटेगा, और जो हमें जो हैलोजन लगाना है, क्योंकि हमें हेलो अल्कीन बनाना है ना, हेलो अल्कीन मतलब कि हमें हैलोजन ऐड करना है, जो भी हमारे पास गिवन अल्केन या अल्कीन है उसमें हमें हैलोजन ऐड करना है, एक हाइड्रोजन को हटा के, हमने यही देखा है। तो यहाँ पे अब
यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो कौन सा हाइड्रोजन हटाएंगे? तो मार्कोनी ऑफ रूल यही बोलता है कि वी विल रिमूव दैट हाइड्रोजन we will remove that hydrogen where the hydrogen is already more in number। तो हम उसी हाइड्रोजन पर जाके मतलब हेलोजन को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मार्कोनी ऑफ रूल बेसिकली सेज दैट HX में से हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड के जिस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन को हम उस कार्बन पे भेजेंगे जिस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है। जैसे हमने हेलोजन एसिड लिया है HX, तो H भी जाके ऐड होगा और X भी जाके ऐड होगा, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? जहाँ पे पहले से ही ज़्यादा है। तो CH2 यहाँ पे पहले से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जाके 2 हाइड्रोजन वाले पे ऐड होगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मोर इन नंबर। और यहाँ पे जो हेलोजन है वो जाके CH में अटैच होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे वो CHX और CH2H है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल। बिल्कुल याद रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है वो जाके ऐड होता है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन पहले से ही है, ठीक है। सो ये हो जाएगा मार्कोनिक ऑफ रूल। जो इससे हम लोग ब्रोमिनेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है और CH3 हाइड्रोजन है, तो HBr और मार्कोनिक ऑफ रूल से हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ जाके ऐड हो गया और ब्रोमीन यहाँ जाके ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कम हाइड्रोजन है और यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहीं पे जाके ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन पहले से है। तो ये होता है मार्कोनिक ऑफ रूल। अब यहाँ पे कुछ मैकेनिज़्म दिया है कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है मार्कोनिक ऑफ रूल, ये कैसे होता है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, तो ये एक मैकेनिज़्म है मार्कोनिक ऑफ रूल का ही। तो यही हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो कैसे जाके ऐड होता है और क्या होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे उसी का हम मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं, जो अभी हमने पहले पढ़ा उसका मैकेनिज़्म देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये CH2 है, तो एक बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा H+ और इसको स्लोएस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। और यहाँ पे जैसे एक यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो ये यहाँ पे पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन गया और ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री पे बना है, तो 2 डिग्री को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्ट करके उस कार्बोकैटायन को हम लोग 3 डिग्री पे भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है कि रीअरेंजमेंट में अकर, और रीअरेंजमेंट को हम हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं, फिनाइल शिफ्ट बोलते हैं। और जो कार्बोकैटायन होता है वो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब अगर हमें यहाँ पे HBr मिल जाए और मार्कोनिक ऑफ रूल से अगर हमें बताना हो कि क्या बनेगा, तो यहाँ पे जैसे कि हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर देंगे जहाँ पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल यही बोलता है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करो। और जो हेलोजन है उसको हम इस वाले कार्बन पे अटैच कर देंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमीन बन रहा है ना, यहाँ पे जो ब्रोमीन बन रहा है वो ब्रोमीन यहाँ पे 2 डिग्री, वो जो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हमें चाहिए एकदम सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो हमें तो पहले से हमने देखा है कि हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पे चला जाएगा और ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे जो 2 डिग्री पे बना था वो कार्बोकैटायन यहाँ पे 3 डिग्री पे बन गया। तो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जो आंसर हो जाएगा, तो जो ब्रोमीन होगा वो आके यहाँ लग जाएगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। एंड नाउ अब हम देखते हैं एक और इफ़ेक्ट पढ़ते हैं एक और। तो बेसिकली ये एंड मार्कोनिक ऑफ रूल का ही जस्ट अपोजिट है, जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल या फिर खरास इफ़ेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे जब तक पेरोक्साइड पहले तो यहाँ पे है कि जैसे कोई भी हमें दिया हुआ है, मतलब RCH कोई भी हमें अगर कंपाउंड दिया हुआ है और अगर इसमें HBr दिया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड दिया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे हमें जो उसका मतलब ये है, और उसमें हमें जो ये दिया है पेरोक्साइड C6H5
पेरोक्साइड मतलब दिया हुआ है, तो वो जो होता है ना वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल में हम क्या कर रहे थे, वी वेयर एडिंग हाइड्रोजन ऑन दैट कार्बन वेयर द हाइड्रोजन वेयर ऑलरेडी मोर इन नंबर, बट हेयर वी विल add hydrogen on that hydrogen where it is less in number, so it is just opposite of Marconi off rule, and it is also called Kharas effect or peroxide effect, because here we are using peroxide, so this is also called peroxide effect. So okay, so this effect is only applicable for HBr. This is the most important point, because if we are given hydrogen chlorine or hydrogen iodine, so it will not be we will not get any kind of reaction here. It is only applicable for hydrogen bromine. So Marconi off rule is not followed here. यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक खरास इफेक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे चला जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है, और पहले हमने जो मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ा था उसमें हाइड्रोजन उस वाले कार्बन पे जा रहा था जहाँ पे ज़्यादा रह रहा था, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जब तक पेरोक्साइड ना लिखा हो तो ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक मार्कोनिक ऑफ रूल एडिशन करो, मतलब पेरोक्साइड अगर लिख दिया और उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमीन दे दिया तो वो बिल्कुल पेरोक्साइड इफेक्ट ही होगा, वहाँ पे हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ही अप्लाई करेंगे और कोई इफेक्ट नहीं। तो मतलब जब HBr प्लस पेरोक्साइड देन ओनली खरास इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल से सारे को समराइज कर सकते हैं, मतलब जितना भी हमने पढ़ा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बहुत ईजी है, अगर हम यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन ब्रोमीन ले लें और पेरोक्साइड ले लें, तो अभी हमने पढ़ा वहाँ पे हमें क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो यहाँ पे हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे डबल अल्कीन में से, और उस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे हम हाइड्रोजन को उस वाले कार्बन पे लगाएंगे जहाँ वो कम हो, तो यहाँ पे इस वाले पे कम है तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और जहाँ पे ज़्यादा है CH2 वहाँ पे हम एक ब्रोमीन को ऐड कर देंगे, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से हो गया। और अगर हमें HCl दिया है और पेरोक्साइड दिया है, तो पेरोक्साइड तो है बट यहाँ पे HBr नहीं है, तो HCl है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नो पेरोक्साइड इफेक्ट होगा, बिकॉज हियर इट इज़ HCl एंड नॉट HBr, ठीक है। और अगर हमें सिर्फ HCl दिया है तो भी यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल होगा, मतलब सिंपल बस यही याद रखना है कि हर जगह मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जस्ट वहीं लगेगा जहाँ पे HBr और पेरोक्साइड दिया हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल से सारे को समराइज कर दिया गया है, जैसे कि ये कंपाउंड दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हम HCl देंगे तो हम यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे, अगर HBr और पेरोक्साइड साथ में है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ लगाएंगे, यहाँ पे HCl और पेरोक्साइड है तो भी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे HBr नहीं है, और अगर यहाँ पे सिर्फ HBr है तो भी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे, मतलब इस दोनों का साथ में होना ज़रूरी है तभी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, अदरवाइज एवरीवेयर इट विल बी मार्कोनिक ऑफ रूल। सो या, and now the last part is allylic substitution। allylic substitution में क्या होता है कि हम यहाँ पे जस्ट क्या करते हैं कि इट ऑल्सो प्रोसीड विथ फ्री रेडिकल, यहाँ हेलोजन को डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा था एलाइलिक किसको बोलते हैं, एलाइलिक बेंजीन हो या एलाइलिक, यहाँ पे हमने अभी जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने पढ़ा था ना एलाइलिक किसको बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स उसको बोलते हैं ना जहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन ऐड हो। तो अगर हमें एलाइलिक हैलाइड्स पे सब्स्टिट्यूशन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अल्कीन है और हमें रिएजेंट मिल गया, तो हम ये डबल बॉन्ड के बगल वाला ये वाला कार्बन है, इस पे हमको हेलोजन ऐड करना है, उसको हम बोलेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, डबल बॉन्ड में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और हेलोजन एटम X अटैच कर देंगे CH2 पे, ठीक है। और रिएजेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, रिएजेंट यहाँ पे डिफरेंट टाइप का हो सकता है, हेलोजन एट हाई टेम्परेचर हो सकता है, NBS जिसको हम लोग N ब्रोमोसक्सीमाइड बोलते हैं, इट गिव्स एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन, SO2Cl2 इट गिव्स एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओनली क्लोरीन, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन
हम कोई भी हैलोजन का यूज कर सकते हैं, बस हैलोजन यूज करो और उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दो, तो वो तुम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे अल्कीन है ये वाला, तो डबल बॉन्ड है, इसको हमने बिल्कुल एज इट इज़ रखना है, और ये जो CH2 है यहाँ पे जस्ट आके क्लोरीन ऐड हो जाएगा। SO2Cl2 में भी जस्ट ये अल्कीन वैसे ही रहेगा और CH2 के जस्ट नीचे जाके क्लोरीन ऐड हो जाएगा। Br2 500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ब्रोमीन अगर ऐड करना है तो ब्रोमीन दो और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दो, तो यहाँ पे अल्कीन एज इट इज़ रहेगा और ब्रोमीन आके CH2 से ऐड हो जाएगा। NBS HBU, तो यहाँ पे NBS का होता है एन ब्रोमो सक्सीमाइड, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ब्रोमीन के लिए होता है NBS का यूज, और यहाँ पे भी हीट दो और बहुत ज़्यादा एनर्जी दो तो अलाइल के जस्ट नीचे आके ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेलो अल्कीन, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड वी विल I will make the another part in just 2 or 3 days. So keep hustling, keep studying, and till then, bye bye.